ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਰ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਹੂੰ। ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨੇ। ਹੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਯਸ਼ਵਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਹੂੰ। ਮੈਂ ਯਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਈ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ? 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਹੈਗੀ? ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਕਦੀ? गूंगी बहरी है। बोल नहीं सकती? हाँ जी, सुनती बोलती नहीं है। घर में वो बात करती थी वैसे ही उसने की है चीखें बात, मारी वो अम्मी, चीखे अब्बू मारी बचाओ। अब्बू अम्मी अपना आप सुना रही सी सानू कि मैनू जिथे भी हैगी आ मैं मैनू बचाओ आन के। इस इलाके के अंदर अब्बास नौजवानों ने 3 नौजवानों ने उसको किडनैप किया जी। ये गरीब पेरेंट्स थाने में गए और थाने में जाकर जब इन्होंने उन गंदे गलीज और कमीने लोगों का नाम लिया तो इस पुलिस ने उन बच्चों के नाम नहीं लिखे जी। और नामालूम अफराद के खिलाफ ये FIR काट दी बराए नाम। जी। ये उस थानेदार की, उस SHO की बेटी होती जी। तो मैं समझता वो कैसे नामालूम करता। जी। ये पाकिस्तान की पुलिस इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि एक बेटी जो है ना वो अगवा हो जाती है जी। और उसको ढूंढा नहीं जाता। और ये FIR की जो डेट है ये तकरीबन ये मार्च के माह की है। हाँ जी। ये 17 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई, 17 मार्च को, जी। और अब ये तकरीबन 5 मई हो गई है, तकरीबन 2 माह का वाकया है। सीधे सानू इंसाफ मिले। मसीह खुदावंद की अजीम और बाबरकत नाम में नाज़रीन, मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और इस वक्त मैं थाना सांदा की हदूद में मौजूद हूँ और एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे पेश आया है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि इस वाक़े को मैं कैसे बयान करूँ। इंतहाई दिलखराश वाक़या, 17-18 साल की एक जो माजूर बच्ची है उसको अगवा कर लिया गया है ज़नाकारी के लिए और अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। ये वालिदैन का इल्ज़ाम है। तो बच्ची की जो वालिदा है वो मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या जो कैसे पेश आया। बाजी दसोगे कि किस तरह ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅਗਵਾ ਹੋਈ? मेरी बच्ची मैं काम ते गई सां। हाँ जी। मैं आई आ ते आंदਿਆਂ सीड़ियां ही जुत्ती पई, एक अच्छा। पैर नीचे एक ऊपर। अच्छा। मैं शॉपर हੱਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਯਸ਼ਵਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਈ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। अच्छा बाजी, ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ? 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਹੈਗੀ? ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਕਦੀ? गूंगी बहरी है। ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਦੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਬਾਹਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੀੜੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਨੀਚੇ ਸੀ। ਜੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਆਈ। ਛੋਟਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਐ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭਿਆ, ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਈ ਆ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਨੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਈ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਫਿਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਫੜਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ 3 ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲਹਾਏ ਨੇ, ਅਲੀ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ। ਅੱਛਾ, ਅਲੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਪੁੱਛ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਜੀ।
ਤੇ ਔਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਥਾਣੇ ਭੱਜੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਜੀ। ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ, ਅੰਮੀ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਕੋਮਲ है, किसी ने पीछे फोन खो लिया दे आज। जी। तो बेटा आप बताओगे कि क्या बोल नहीं सकती थी वो, तो किस तरह आपको पता चला कि ये कोमल का फोन? जैसे घर में वो बात करती थी वैसे ही उसने की है बात। वो चीखे मारी, अब्बू अम्मी अपना आप सुना रही सी सानू कि मैनू जिथे भी हैगी आ मैं मैनू बचाओ आन के। सिर्फ 2-3 मिनट गल हुई, उस तो ज्यादा नहीं हुई। अम्मी चीखा मारती रही? हाँ जी, चीखा मारती रही है। 3 मिनट तो ज्यादा गल नहीं हुई जी। ते इंतहाई अफसोसनाक वाकया मैं समझना कि जिन्नी भी ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਗੀ ਬੈਰੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਚਾ ਦੇਣ ਘਰ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਬਚਾ ਦੇਣ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਮੇਰੀਆਂ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ, ਜੀ। 3 ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਹਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਭੈਣ ਲੱਭੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਭੈਣ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। जी। जॉनसन भाई वापस आए हैं और पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़या आ रहे हैं, जिनसी ज़्यादती के, बच्चों के साथ बच्चों को अब्यूज़ करना और फिर जबरी तब्दीली मज़हब और हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਸਮਸੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਾਂ। जी। ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਰਕ ਮਸੀਹ ਗਿੱਲ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, जी। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕ ਹੈ जी। ਸੀ, जी। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀ, ਜੀ। ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ जी। जी। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ नादिर आया। शेयर करते जाइएगा। इस वक्त तारक मसीह गिल साहब भी आप दीदा हैं। जी जॉनसन भाई, क्या कहना जी। चाहेंगे? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। जी। तारक भाई, अल्फाज नहीं है मेरे पास कि किस तरीके से मैं इस दर्द को बयान कर सकूं कि एक मज़दूर बच्ची गूंगी बहरी, सुन नहीं सकती, 16-17 साल, इशारों से बात कर सकती है, फ़ोन पे चीखे मार के उसने ये सारी स्टोरी बताई है। तो क्या करने की ज़रूरत है, क्या करेंगे आप? सलीम भाई, इस लाचार गरीब और बेबस फैमिली के अंदर आकर जी। इंतहाई दुख से भर गया हूँ। जी। इस दास्तान को सुना, वो बेटी जो सुन भी नहीं सकती और जी। जो बोल भी नहीं सकती, जी। उसको औबाश लोगों ने उठा लिया जी। और उनके उठाने का एक मकसद है, यही है कि वो बच्ची बहुत खूबसूरत है। जी। उसकी खूबसूरती तो खुदा ने दे दी, मगर उसको ज़बान न दी, उसको कान न दिए। फिर भी मैं कहता हूँ कि ये गरीब माँ बाप जो अपनी बेटी को देखते हुए उसको, जो गूंगे बहरों का स्कूल है वहाँ से उन्होंने पढ़ाया, जी। इनके पास मैंने वो उसकी रोल नंबर स्लिप देखी, जी। रोल नंबर स्लिप देखी जो, जी। तो ये रोल नंबर स्लिप जो कागज मैंने आपके जो पास? देखी थी, जी। उसके ऊपर मैंने अपने आप को, जी। जो ही मैंने उसकी रोल नंबर स्लिप, ये मेरे पास है, जी। ये रोल नंबर स्लिप, जब इसके ऊपर ये इसकी तस्वीर है ये वाली, जी। और ये इसके ना वो पेपर्स की ये कहानी है कि उसने पेपर किस किस डेट को देने थे। जी। तो ये बच्ची जिसने तालीम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी थी कि जी, मैं जी। पढ़ूंगी, मुझे खुदा ने अगर कार नहीं दिए, ज़बान नहीं दी, तो मेरे पास तालीम होगी, तो मैं अपना फ्यूचर जो ब्राइट कर लूँगी। जी। इस इलाके के अंदर औबाश नौजवानों ने, 3 नौजवानों ने उसको किडनैप किया। जी। ये गरीब पेरेंट्स थाने में गए,
और थाने में जाकर जब इन्होंने उन गंदे गलीज और कमीने लोगों का नाम लिया तो इस पुलिस ने उन बच्चों के नाम नहीं लिखे जी और नामालूम अफराद के खिलाफ ये FIR काट दी बराए नाम। जी ये उस थानेदार की उस SHO की बेटी होती जी। तो मैं समझता वो कैसे नामालूम करता। जी ये पाकिस्तान की पुलिस इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि एक बेटी जो है ना वो अगवा हो जाती है जी और उसको ढूंढा नहीं जाता। और ये FIR की जो डेट है ये तकरीबन ये मार्च के माह की है। हाँ जी ये 17 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई, 17 मार्च को, जी और अब ये तकरीबन 5 मई हो गई है, तकरीबन 2 माह का वाकया है। और जब ये लोग थाने में जाते हैं, इन्होंने मुझे जब अभी दास्तान सुनाई कि थाने में जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस वाले जो है वो इनको टिचकरे करते हैं, मजाक करते हैं। कोई बात नहीं, कल की डेट आएगी, मेरे खुदा ने चाहा तो ये लोग, इन लोगों को इंसाफ दिलवाऊंगा। जी मैं नहीं छोड़ूंगा, उन नौबाश नौजवानों को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर इसमें कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व हुआ तो उसको भी नहीं छोड़ूंगा। जी कल की डेट में मैं इसको तहरीक इल्तवाकार पेश करूंगा असेंबली हॉल में। जी और यहाँ का SHO DSP SP मैं नहीं समझता कि वो इतने नकम्मे होंगे, जी लेकिन वो ढूंढेंगे। जी तारिक साहब ये बच्ची मिलनी चाहिए बस। थैंक यू सो ये मच। बच्ची मैं मिलनी समझता हूँ चाहिए, कि ये बच्ची मिलनी चाहिए बस। ये हमारे इस बच्ची को मैंने ढूंढ के रखना है, मैंने इतनी देर तक सोना नहीं है। जी कल और से, कल हमारे- का दिन, कल का सूरज जो है ना इस बच्ची की तलाश के लिए होगा। जी मैं तारिक साहब यही कहना चाहूँगा आपसे कि मैं समझता हूँ कि लीडर वही है जो दर्द दूसरों का महसूस करे, ये दूसरों मेरी के दर्द बेटी को। है हाँ सलीम जी, साहब, ये मेरी बेटी है। जी मैंने इसको तलाश करना है। मैंने इसकी आहो नाला जो इसने अपनी माँ को फोन करके बताया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने देखना कुछ नहीं इस लोगों के, इस अब बच्ची देखें को। ये- मैं कहता हूँ मुर्दा बच्ची दे दे, जी, जी। जिंदा बच्ची मिले, ये पुलिस का काम है, ये तलाश करेंगे। जी 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 और मैं इनको तलाश करके, बच्ची मुझे मुर्दा चाहिए या जिंदा चाहिए, लेनी है मैंने। जी और ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, जी जब तक इस बच्ची को हम रिसीव नहीं करेंगे, जी। तारक चैन से अपने घर में नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। जी। ये मेरा बरमला ऐलान है। मुझे इसके लिए भूख हड़ताल करना पड़े, मुझे इसके लिए असेंबली हॉल के सामने और अंदर धरना देना पड़े, मुझे इस बच्ची को रिसीव करने के लिए अपनी जान का नजराना देना पड़े तो दे दूंगा, मगर इस बच्ची को मैंने रिसीव करना है। जी तारिक साहब थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। बस जी हम आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है। ये आए जीत रहे, ये देखें, ये सलीम साहब, ये इसका बाप है, इसका हाथ देखें, ये मजदूर है, ये मजदूर है। इसकी मजदूरी का ये रिजल्ट है कि इसकी बच्ची नहीं मिल रही। ये इसका हाथ, इसको मैंने उठाया है। अब इसका बाजू तारक गिल बनेगा, तारक गिल बनेगा, तारक गिल बनेगा, तारक गिल बनेगा। मेरे वक्त की तरह मैं बड़ी मसाला सामी है, इन्हें अपनी बच्ची चाहिए। मेरा यीशु जरूर इस बच्ची को तलाश करेगा। नाज़रीन मेरा यीशु जरूर इस बच्ची को अल्फाज तलाश नहीं करेगा, है कि बेफिक्र किस तरीके से रहिए। इस दुख को, इस खानदान के दुख को बयान जरूर किया आपकी जाए, मदद करेगा, जरूर आपकी मदद लेकिन आप मेरा बाजू बने, आप शेयर करें, हुक्मरानों तक हमारी आवाज़ जाए, हुक्मरान भी करें। यहाँ पर मैं अपने सूबाई मिनिस्टर एजाज आलम मदस्टिन साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये खबर आप तक भी आ गई है, आप भी कोशिश करें। तारिक गिल साहब भी आपके साथ लगेंगे, तारिक साहब भी आ गए हैं मैं उनके घर खुद में। करूंगा, मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जी मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ खड़े हो जाए, इस बच्ची को तलाश करना, मुर्दा मिल जाए या जिंदा मिल जाए, हमने ले लिया बच्ची। जी जी मैं वजीर आला से भी अपील करूंगा, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी अपील करूंगा, जी मैं IG पंजाब से भी अपील करूंगा, मैं वजीर कानून राजा बशारत से भी अपील करूंगा, जी मैं इन तमाम लोगों से अपील करूंगा, स्पीकर को जो सूबाई असेंबली चौधरी परवेज राय से भी कहूंगा जी जी कि खुदा के लिए इस बच्ची को जुल्म से बचाया जाए। जी जी
ये तो कोई तरीका नहीं है, ये इंसानों का मुल्क है, नाटे जानवरों का, नाटे हैवानों का। ये हैवान की नहीं होनी चाहिए, ये जानवर नहीं बनने चाहिए। मासूम और गूंगी बहरी बच्ची के साथ ज्यादती बिल्कुल नाकाबिले कबूल है जी मुझे समझ नहीं आती कैसे हम साए हैं, कैसे नेबर में लोग रहते हैं। जी मैं नीचे वाले लोगों की भी इंक्वायरी कराऊंगा, मैं आस पास के लोगों की भी इंक्वायरी कराऊंगा कि 2 माह से बच्ची नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही। इन लोगों की बेटियां नहीं है जो इस मोहल्ले में रहते हैं, मैं इनकी तो इंक्वायरी कराऊंगा खुदा के फजल से। जी थैंक यू। कल मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मैसेज पाक आर्मी का बड़ा अच्छा मैसेज था कि अक़लियतों का हर तरह से ख्याल रखा जाए। इस वक्त मैं पाक आर्मी के सरबराह से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अक़लियतों के साथ ऐसे जो वाक़यात बढ़ रहे हैं, जिनसी ज़्यादती के, जबरी तब्दीली मज़हब के, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पाकिस्तानी मसीही जो हैं पाक आर्मी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और आपका जो बयान है उससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिला कि पाक आर्मी अक़लियतों का ख्याल रखेगी। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हमारे साथ खड़े हो जाएं, और इस बच्ची को ढूंढना नामुमकिन नहीं है इसी पाकिस्तान में, यहाँ पर ही है ये बच्ची। इसी तरह एक और 13 साल की बच्ची को हफ्ता हो गया वो गायब है घर से, और 12-12, 13-13 साल की बच्चियों से इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। खुदा के लिए हमारे दर्द को महसूस करने की कोशिश करें, हमारे दर्द को जानने की कोशिश करें कि रोज़ हमारे दिलों पर छुरियाँ चलती हैं, रोज़ हमारे दिलों पर जो है ब्लेड फिरते हैं। तो खुदा के लिए आप हमारा साथ दें और इसको आप शेयर भी करें ताकि हुक्मरानों तक हमारी आवाज़ जाए, और तमाम जो हमारे अक़लियती नुमाइंदे हैं वो भी इसी तरह दर्द महसूस करें अवाम के दिलों का। अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। थैंक यू सो मच जी, आप सब लोगों का साथ देने का, जुड़े रहने का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदे तक ये बात चली जाए कि पाकिस्तान में मज़दूर बच्चों को अगवा किया जा रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। थैंक यू।